Now this is the easiest and the last chapter, okay, under this unit 6, which is complex integration. Is it ready? So now second chapter, okay, जो first chapter आपका है, the title of that chapter is complex differentiation. इसलिए आपने वो सारे derivative related topics देखे थे. Okay, now we have to actually learn the complex integration. Okay, first result is what? This complex integration is totally different, okay, than your regular integration. तो आपको दोनों इंटीग्रल में कहीं पे कुछ भी कंपैरिजन नहीं करना है. Okay, real integration part is different. Now complex integration part is different. Okay, so that is the first part. Now so let me start with the line integral. जैसे आपने यूनिट 5 में है ना, लाइन इंटीग्रल से आपने स्टार्ट किया था. आफ्टर दैट ग्रीन्स थ्योरम, आफ्टर दैट स्टोक्स थ्योरम, आफ्टर दैट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. दैट इज योर होल यूनिट. ठीक है. So in a similar way, in case of complex thing, the line integral is defined by, so that is the definition. So let f of z, है ना, so complex function we have to consider here. Okay, f of z का अभी आपको मीनिंग पता है. f of z means what? जहाँ पे मैं f of z लिखता हूँ, f of z is a complex function और it is a complex number. नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो वेरिएबल फॉर्म में, but it look like a complex number. Okay, so f of z की वैल्यू सारे क्वेश्चन में क्या है? u plus iv, and where this u is v is function of x and y. ठीक है. और सिंपली यू कैन राइट दिस एज u of xy plus I times v of xy. This is the definition of complex function. So let f of z be a continuous function, okay, of a complex variable defined at all points, okay, on the curve. है ना, this is your curve. It is defined for all the points on the curve and having the end points z0 and zn. And suppose the end points of this curve are say z0 and zn. Then how you define the line integral? Okay, line integral over this curve. You know? So this is your curve C. And how you define the line integral over this curve? Okay, it is denoted by integral of f of z. Okay, integral of f of z over dz. So integral of f of z dz, and it is defined from the initial point and the end point. Okay, so z0 to z1 f of z into dz. Okay, so that is your complex integral, or I can say the line integral. ठीक है. इसके भी एग्जाम्पल्स है बुक में. ओके, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न और दी एज फार एज द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चंस आपको नहीं आते. ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपको ऑलरेडी यूनिट 5 में कवर हो जाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स में सेपरेट आपको लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चंस नहीं आने वाले. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं नहीं ले रहा हूँ. ओके, आई थिंक फ्यू एग्जाम्पल्स, 1 or 2 एग्जाम्पल्स आर देयर इन बुक. इफ यू वांट यू कैन रेफर दैट, बट एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न are not that much important, or you can easily identify from this. Okay, z0 to z1 आपको बस जैसे आप रेगुलर में इंटीग्रेशन करते हो वैसे इसको सॉल्व करना है. सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. ठीक है. नाउ देयर आर फ्यू रिजल्ट्स. ओके, व्हाई आई गिव यू दिस रिजल्ट? ओके, इट इज ओनली फॉर द एमसीक्यू पर्पस, है ना. सो फर्स्ट रिजल्ट इज व्हाट? द वैल्यूज ऑफ द लाइन इंटीग्रल आर डिफरेंट अलोंग अ डिफरेंट पाथ. ओके, जो आपने ऑलरेडी लर्न किया. अभी एक क्वेश्चन जो असाइनमेंट में भी मैंने दिया है. ओके, फ्रॉम दैट आल्सो यू कैन सी, आई थिंक देयर इज वन ट्रायंगल, है ना, and you have to calculate a line integral along this C1, line integral along this C2, and line integral along this C3. And you can easily observe that this line integral is always different for a different path. Okay, it is different for C1, it is different for C2, it is different for C3. Okay, so that is the first result. So it is actually in general result. Line integral is always gives a different value for a different path. The line integral depends on not only the terminal points but also the path joining the points, है ना. तो ये जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द पाथ. ओके, ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, है ना, व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ. जस्ट 1 मिनट अगेन. तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है? दिस लाइन इंटीग्रल इज एक्चुअली डिपेंड, नॉट ओनली डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट्स और द टर्मिनल पॉइंट, इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द पाथ. ठीक है. सो ऑब्वियसली द क्वेश्चन कम्स इज व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ. ओके, तो ये एक रिजल्ट, इसके एक रिलेटेड रिजल्ट आपने यूनिट 5 में देखा है, आई थिंक यूनिट 4 में देखा है. ओके, दैट रिजल्ट इज व्हाट? इफ इन केस ऑफ वेक्टर फील्ड, आप देखो सारी चीजें आप कैसे लर्न कर रहे हो. ओके, इंटीग्रेशन आप वेक्टर में भी लर्न कर रहे हो, है ना, फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में भी लर्न कर रहे हो, है ना. सो हियर देयर इज वन रिजल्ट एज फार एज वेक्टर्स आर कंसर्न, दैट इफ f bar is the irrotational vector field. Okay, if it is irrotational vector field, in that case that line integral, okay, not a close, line integral over C f bar dot dr bar, this line integral is independent on the path. जरूरत है ही नहीं. You have to just consider the initial point and the end point, and from that you can find that line integral. So in a similar way here, that f of z is, if that f of z is analytic. Okay, अभी एक आपका confusion होगा what is meant by analytic. ठीक है,
तो अभी के लिए इसको आप ऐसे याद रखो, या सिंपली आप एनालिटिक के जगह पे आप वर्ड याद रखो डिफरेंशिएबल। आई थिंक ये सॉरी सॉरी हाँ ये मैंने एक्सप्लेन किया है ना, ये हो चुका है। तो हाँ, एनालिटिक मीन्स व्हाट, एनालिटिक मीन्स व्हाट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, या हमने जो डेफिनेशन देखी थी दैट इज व्हाट, इट सैटिस्फाई सीआर इक्वेशन। दैट आर डिफरेंट डेफिनेशंस एज फार एज एनालिटिक फंक्शंस आर कंसर्न। ठीक है, सो इफ योर फंक्शन इज एनालिटिक, सिंपली आप इसके जगह पे याद रखो इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द रीजन आर, देन this line integral is independent on the path. So this result is very important as far as your MCQs are concerned, है ना, कि गिवन फंक्शन आपका एनालिटिक है तो वहां पे आपको बस इनिशियल पॉइंट एंड माइनस पॉइंट फाइनल पॉइंट से ही मतलब है। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ, है ना। इट मींस फ्रॉम Z1 to Z2 अगर आप ये पाथ लेते हो, है ना, f ऑफ z का, या अगर आप ये पाथ लेते हो f ऑफ z का, इफ इट इज एनालिटिक देन इट्स इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, दोनों जगह पे वैल्यू सेम होगी। ओके, there are few definitions, new definitions. Now next is what, simple closed curve. ठीक है, what is the definition of simple closed curve? A curve is called a simple closed curve if it does not intersect itself, है ना, if it does not intersect itself then that curve is called as simple closed simple closed curve. Okay, so you can see this part in diagram. So here the C curve is a simple closed curve because it so this curve will not intersect itself, है ना, does not cross itself. So obviously the other form is multiple curve. A curve which crosses itself, is called as multiple curve. So here you can see this curve which crosses at point say P, है ना, therefore it is called as multiple curve. Next is what, connected region, है ना. So a region is said to be connected if any two points in the region can be connected by a curve which lies entirely in the region, है ना. If okay, so you take any region, region, okay, when we call that region to be connected, अगर आप उस region में कोई भी दो points लेते हो, if I take any two points, then a line joining by these 2 points must lie, okay, in that region itself. ठीक है, if it is not possible then it become not connected region. ठीक है, so that is the first part. So can I take one example on this? अगर आप ये एक रीजन लेते हो, ठीक है, so here also you can see, okay, a line joining to this does not lie in this region. ठीक है, ये बस आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले रहा हूँ. I think there is one example in below. Now simply connected region means what? It is a region which has no holes. ठीक है, no holes, है ना. So you can say this is a simple connected region. Okay, it has no hole. But here as there is a hole, है ना, because this part is not our region. ये region का part नहीं, जो मैंने highlight किया वो आपका region है ना. So as this is not a part of region, therefore there is a hole in between this given region, and therefore it is called as, or it is a multiple connected region, or it is not a simply connected region. ठीक है, ये definitions आपको आ सकते हैं एग्जाम में. And now we'll come to the first theorem of this topic, which is Cauchy's theorem. अभी तक जितना भी पार्ट एक्सप्लेन किया है, these are few I can say the prerequisites or the definitions that we need, okay, while defining this next theorem, which is Cauchy's theorem. Okay. And now, what do I mean by Cauchy's theorem? Okay, so statement is like this: if f of z is an analytic function, so first condition is what? It is analytic function, and f dash of z, so f of z is analytic, है ना, f dash of z is continuous, है ना, its derivative is continuous at each point within, ये important word है, within means inside of that region, and on means on boundary, okay, within and on boundary, okay, so it is continuous at each point within and on the simple closed curve. Simple closed curve का मीनिंग क्या होता है? What is meant by simple closed curve? I already told you the definition. Simple closed curve means what? Is there this, okay, it does not crosses itself like that, okay, so we don't want a curve like this. Okay, so for this theorem you have to consider only a simple closed curve. Simple closed curve means which does not intersect itself, or which not crosses itself. So that is our curve C, and it is a closed curve. Okay, सबसे important part closed curve है, आप open curve के लिए नहीं जा रहे हो, है ना, it is for closed curve only. Then the line the
लाइन इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। सिंपल में आपको इसको एक सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपका फंक्शन इस कर्व के बाउंड्री के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे या कर्व के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे, इन सारे पॉइंट्स पे अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक on analytic on and within that region of curve C, then their line integral is 0. Okay, I will repeat क्योंकि ये मुझे यूज करना है immediately while solving the examples on this Cauchy's theorem. Okay, अगर आपका फंक्शन कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे या कर्व के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे, उन सारे पॉइंट्स पे अगर आपका फंक्शन एनालिटिक आता है, ठीक है, देन देयर लाइन इंटीग्रल इज 0. ओके, सो रिमेंबर दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम, Cauchy's थ्योरम. सो इफ एफ ऑफ जेड एंड एफ डैश ऑफ जेड, ओके, एफ डैश ऑफ जेड के लिए भी ये रिजल्ट है, बट यू कैन चेक ओनली फॉर एफ ऑफ जेड एज फार एज आवर एग्जांपल्स आर कंसर्न, बिकॉज ऑल आवर एग्जांपल्स आर एनालिटिक डिफरेंशिएबल फंक्शंस, एनालिटिक फंक्शन, तो ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट रहेगी बात. सो इफ योर फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन of this simple closed curve, then the line integral is 0. Okay. Now if f of z is analytic, then a line integral from z1 to z2 f of z dz is independent of the path joining the point z1 and z2. ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि एनालिटिक फंक्शन आता है तो उस केस में पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता. ओके, आप किसी भी पाथ से आप वहां पे जा सकते हो, बट एट देन विल गेट द सेम वैल्यू. नाउ जो फर्स्ट थ्योरम मैंने डिफाइन किया था, ओके, उसमें एक और कंडीशन ऐड करके, ओके, नाउ यू विल हैव द अनदर थ्योरम. ओके, दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न. ओके, ये एक कैन से द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, दैट इज द Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला. ये अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे. ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में आपको सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, प्रीवियस थ्योरम क्या था कि एक कर्व आपके पास थी, दिस इज योर कर्व सपोज, ठीक है, और आपको जो फंक्शन था एफ ऑफ जेड फंक्शन जो था आपका, ओके, दैट फंक्शन इज एनालिटिक. एक्चुअली दैट फंक्शन इज एनालिटिक फॉर ऑल द पॉइंट्स इनसाइड दिस कर्व एंड ऑन द बाउंड्री. अभी मैं क्या करने वाला हूं, ओके, आई विल टेक वन पॉइंट इन दिस सर्कल, लेट मी टेक अनदर कलर. I will take one point in this circle and at this point say z0 or a, what may be point you want to take. Okay, I will take a. Okay, तो एक पॉइंट में सर्कल के अंदर लेने वाला हूं. सर्कल के अंदर कहीं पे भी, सेंटर पे चाहिए ऐसा भी नहीं है, और उस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या होगा, नॉट एनालिटिक. प्रीवियस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन एनालिटिक था. अब एक ऐसा रीजन है जहां पे, जिस रीजन में एक पॉइंट पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं आ रहा है. ओके, इन दैट केस हाउ यू सॉल्व दैट इंटीग्रल. अगर सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक है तो वैल्यू 0 आती है. अगर किसी एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं आ रहा है तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए आपके पास ये नेक्स्ट रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड एज Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस रिजल्ट. इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन अ क्लोज कर्व सी, ओके, ये एफ ऑफ जेड है. ओके, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. एंड इफ ए इज अ पॉइंट, ओके, पॉइंट विद इन अ सी, ओके, सी के अंदर एक पॉइंट है, हाँ, देन द लाइन इंटीग्रल, ओके, आप चाहो तो ये फॉर्म याद रखो या आप चाहो तो डायरेक्टली सेकंड फॉर्म याद रखो. देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए. अब आप थ्योरम अच्छे से देखो, थ्योरम के अंदर न्यूमरेटर आपका एनालिटिक है, बट दिस होल फंक्शन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट अबाउट दिस होल फंक्शन? इज दिस होल फंक्शन जी ऑफ जेड इज एनालिटिक फॉर दिस कर्व? इस कर्व के ऊपर या कर्व के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे, whether this g of z is analytic for all the points within and on the curve C. बोलो, इस कर्व के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे या कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे, ओके, उन सारे पॉइंट्स के लिए ये g of z, इंटीग्रल ऑफ g of z, ये टोटल फंक्शन g of z है ना, तो ये फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं? यस, टेल मी यस और नो. इज इट एनालिटिक? यस, आर यू देयर और नॉट? इज इट एनालिटिक और नॉट? ये फंक्शन आपका एनालिटिक हो रहा है क्या? ओके, आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन. एक मैं फंक्शन लेता हूं एफ ऑफ जेड से, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं या तो समझ में आ गया. चलो, f1 ऑफ x लेता हूं एंड सेकंड फंक्शन लेता हूं f2 ऑफ x.
Okay, can anyone tell me at which point this function is not analytic? कौन से पॉइंट्स के लिए फंक्शन आपका नॉट एनालिटिक हो जाता है? एनीवन? फॉर एग्जाम्पल 1/z, ये कौन से पॉइंट के एनालिटिक नहीं है? ओके, सो रिमेंबर एज फार एज दिस क्वोशंट फंक्शन आर कंसर्न, एफ ऑफ जेड अपन जी ऑफ जेड के केस में, ओके, इफ योर डिनोमिनेटर इज जीरो, जहां पे आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है, ओके, उन पॉइंट्स पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं आता. ओके, दैट इज this function is not analytic when your denominator is zero, because we don't want the infinity value. Differentiable function में ऐसा नहीं होता. Okay, so if your denominator is zero, at that point your function is not analytic. तो इस केस में जो आपका g of z है, this g of z is not analytic when z equal to a. वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था. यहाँ पे जो फंक्शन में ले रहा हूं ना, ओके, प्रीवियसली तो आपका इंटीग्रल अभी क्या है? सो हियर यू विल हैव इंटीग्रल ओवर c g of z dz, but this g of z is not analytic at one point inside this curve. But previously क्या था? जो आपका फंक्शन था f of z dz, ये टोटल एनालिटिक था पूरे कर्व के लिए. ठीक है, therefore its value is 0, बट इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी. उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 pi i मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2 pi i मल्टीप्लाई बाय जो न्यूमरेटर है, ओके, न्यूमरेटर की वैल्यू एट a, मतलब जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पे f of z की वैल्यू कैलकुलेट करो. ठीक है, दैट इज वर रिजल्ट. ओके, बट फिर भी आपको एक क्वेश्चन से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. सो बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल क्वेश्चंस, ओके, लेट मी टेल यू फ्यू रिमार्क्स. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स एज फार एज दिस कॉची इंटीग्रल थ्योरम इज कंसर्न. ओके, एंड नाउ द फर्स्ट रिजल्ट. फर्स्ट रिजल्ट इज लाइक दिस, मॉड z माइनस z नॉट इक्वल टू r. ठीक है, ऐसे रीजन आपको आने वाले, ठीक है, जैसे कर्व्स आपको आने वाले. मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r. ठीक है, नाउ हाउ यू ड्रॉ दिस कर्व, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है या कर्व का नेचर ड्रॉ करना है. ज्यादातर केस में 90% केस में वो सर्कल ही है, बट वो सर्कल आपका कॉम्प्लेक्स में होगा. सो यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसके लिए मैं रिजल्ट दे रहा हूँ. सो रिमेंबर, मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r. z क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ तो वैल्यू रहेगी x प्लस आई बाय. z नॉट भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, x नॉट प्लस आई टाइम्स y नॉट, एंड r इज द रियल नंबर. ठीक है, सो मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r. दिस इज एक्चुअली अ सर्कल. ये क्या होता है आपका? सर्कल. सर्कल है मतलब आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए. विथ सेंटर इज व्हाट? x नॉट कॉमा y नॉट. जो z नॉट के वैल्यूज है ना, ठीक है, z नॉट का जो रियल पार्ट है, z नॉट का जो इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज योर सेंटर. तो यहाँ पे कहीं पे वो x नॉट y नॉट होगा एंड रेडियस इज r. तो x नॉट y नॉट पे r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो. ओके, आई होप इट इज क्लियर. So always remember, mod of z minus z naught equal to r gives you a circle whose center is at z naught. Z naught मतलब x naught comma y naught and radius is r. Okay, तो यहाँ पे इसलिए मैंने प्रॉपर फॉर्म में दिया है. mod of z माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये साइन इंपॉर्टेंट है, प्लस आता है तो उसको माइनस में कन्वर्ट करो. सो mod of z माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, वन टर्म इज मिसिंग, इक्वल टू r is actually is a circle centered at x naught y naught and radius is r. So here r is missing, that you need to consider. Correct? ना, यहाँ पे मैंने नीचे ड्रॉ करके भी दिया. फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 1, इसको आप कैसे लिख सकते हो? मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू 1. सो क्लियरली इट इज सर्कल सेंटर्ड एट 0 0, सेंटर्ड एट 0 0, रेडियस इज 1. यहाँ पे देखो z माइनस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 0 प्लस 2i. ओके, रियल पार्ट है नहीं तो रियल पार्ट 0 होगा. सो दिस 2i कैन बी रिटन एज 0 प्लस 2i. देयरफॉर योर सेंटर इज 0,2. 0,2 पॉइंट यहाँ पे आएगा. ठीक है, 0,2 and radius is 3/2, means 1 point something. Okay, 1 point something. इसे ड्रॉ करो. ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर एक रिजल्ट दिया था कि एनालिटिक फंक्शन की ये एक और सिंपल डेफिनेशन है. अगर आपके दोनों फंक्शन एनालिटिक है, एफ ऑफ जेड भी एनालिटिक है और जी ऑफ जेड भी एनालिटिक है, बट अगर आप उसका क्वोशंट लेते हो, अगर आप उनका क्वोशंट लेते हो, देन इट इज एनालिटिक ओनली व्हेन योर जी ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू 0. ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस आपको, या सारे फंक्शन मतलब सारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड सारे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर, वो आपको हमेशा एनालिटिक ही आने वाला है. ठीक है, आपको बस क्या देखना है कि वेदर दैट क्वोशंट, दैट होल क्वोशंट इज एनालिटिक और नॉट. एंड फॉर दैट जस्ट चेक द डिनोमिनेटर वैल्यूज. सो नाउ दिस रिजल्ट यू हैव टू फॉलो इन ईच एंड एवरी एग्जांपल.
तो जिस क्वेश्चन में या जिस फंक्शन में आपके डिनोमिनेटर के वैल्यू 0 आते हैं, ठीक है, वो वैल्यूज के लिए फॉर दैट वैल्यूज योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. सो इट इज नॉट एनालिटिक व्हेन योर g ऑफ z इक्वल टू 0. ये रिजल्ट हमें यूज करना है. चलो नाउ एक्चुअली स्टार्ट द एग्जांपल्स ऑन कॉचीज थ्योरम. ओके, एंड द कॉचीज थ्योरम मतलब क्या है? व्हाट इज कॉचीज थ्योरम? इंटीग्रल ओवर c f of z dz इक्वल टू 0. ओके, वेयर दिस f of z इज एनालिटिक फॉर ऑल पॉइंट्स. अगर किसी एक पॉइंट पे, ये फर्स्ट रिजल्ट में सारे पॉइंट्स के लिए एनालिटिक है, और जो सेकंड रिजल्ट है जिसमें एक पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है, एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, मतलब आप उसको ऐसे लिखोगे, एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, वो पॉइंट नीचे लेता हूं. अब आपको दिखाई दे रहा है कि z इक्वल टू a पे ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है. z इक्वल टू a पे ये फंक्शन, ये कोशेंट फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है बिकॉज योर डिनोमिनेटर बिकम 0. तो उस केस में आपका आंसर क्या होता है? 2 pi I f एट पॉइंट a. ठीक है, सो फॉर ऑल पॉइंट्स इट इज एनालिटिक, नॉट एनालिटिक एट वन पॉइंट. ठीक है, नाउ विल टेक सम एग्जांपल्स. So question 1 is like this: evaluate a line integral over c z square plus 1 upon z minus 2 dz where c is the circle. First, there are two regions now. So in both region we have to solve this question. So in first case c is the circle mod z minus 2 equal to 1. Okay, तो पहले 1 by 1 में कंप्लीट कर लेता हूँ. And next case में c is the circle mod z equal to 1. Okay. So first focus this function. हमेशा पहले इंटीग्रल में क्या गिवन है वो देखो. Okay, as this is the quotient function. Quotient function मतलब क्या है? ये इस टाइप में f of z upon g of z. So as it is a quotient function, so this given function is not analytic when your denominator is 0. This function is not analytic when your denominator is 0. That is for z equal to 2, this function is not analytic. चलो एक रिजल्ट मिल गया. इसके आगे क्या करना है? तो हमेशा सारे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा इन एवरी एग्जाम्पल ना. नेक्स्ट पार्ट इज एनालिटिक फंक्शन. अभी तक आपको एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या पता है? इट सैटिस्फाइज सीआर इक्वेशन. जब भी एनालिटिक फंक्शन आता है तो आपको मैं क्या बोलता हूँ? जस्ट चेक वेदर इट सैटिस्फाइज सीआर इक्वेशन और नॉट. ओके, बट नाउ देयर इज वन मोर डेफिनेशन एज फार एज कोशेंट फंक्शन इज कंसर्न. ठीक है, कोशेंट फंक्शन में सम एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जी ऑफ जेड. इस फॉर्म में अगर आपका फंक्शन आता है देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, रिजल्ट क्या है? If your numerator is analytic, means if your f of z and g of z are analytic, simply अगर आपका न्यूमरेटर भी एनालिटिक है एंड अगर आपका डिनोमिनेटर भी एनालिटिक है, then this whole term f of z upon g of z is analytic only when your denominator is not equal to 0. Means what? जिस पॉइंट्स के लिए, okay, जिस पॉइंट्स के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 होगा, at that point your function is not analytic. Simply this function is not analytic when your denominator is 0. तो ये रिजल्ट मुझे आगे चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट नाउ विल सी द एग्जांपल्स ऑन कॉचीज थ्योरम एंड कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम. ठीक है, कॉची थ्योरम क्या था आपका? कॉची थ्योरम क्या था कि अगर आपका फंक्शन सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक आता है तो आपका आंसर आता है 0. कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या था? सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक आ रहा है बट एक पॉइंट पे अगर वो एनालिटिक नहीं आ रहा है तो आप देखो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस है. ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जेड इक्वल टू ए पे या आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा है. So this function is not analytic at z equal to a. In that case, your integral is 2 pi I into numerator at a. Numerator at a. ठीक है? So now we'll take some examples. So let me start with the first example. So evaluate the integral z square plus 1 upon z minus 2 dz where now c is the curve. So there are two different cases. First case में c क्या है? Circle mod z minus 2 equal to 1. Second case में c क्या है? Circle mod z equal to 1. चलो, हमेशा सारे एग्जांपल्स में पहले आपको यह देखना है कि आपका फंक्शन कौन से पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं आ रहा. ठीक है, और आपको रिजल्ट पता है जिस पॉइंट्स पे आपका डिनोमिनेटर 0 होता है एट दैट पॉइंट्स योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट हियर? गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक व्हेन योर डिनोमिनेटर इज 0, दैट इज फॉर z इक्वल टू 2. तो अभी आपको आपके पास वो सारे पॉइंट्स है जिन पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा है. सो क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट वन पॉइंट. एट वन पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर एक ऐसा भी टॉपिक आने वाला है जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट्स पे वो एनालिटिक नहीं होगा. एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज डिफरेंट रिजल्ट विच इज कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में या ये जो सेकंड फॉर्मूला है, ओके, इस सेकंड फॉर्मूले में वो एक ही पॉइंट पे एनालिटिक नहीं चाहिए. ठीक है, दैट इज अ कंडीशन. चलो आगे जाते हैं. सी इज द सर्कल. सर्कल ड्रॉ करता हूं. मॉड ऑफ जेड माइनस 2 इक्वल टू 1. बट 2 को आप कैसे लिख सकते हो? कॉम्प्लेक्स में 2 प्लस 0 आए तो एक 2 0 पे एक सर्कल ले लो
ऑफ रेडियस 1 ड्रॉ किया है। अभी देखो कि z इक्वल टू 2 सर्कल के अंदर आ रहा है, सर्कल के ऊपर आ रहा है या सर्कल के बाहर आ रहा है, ये सारी चीज आपको चेक करनी है। आपको दिखाई दे रहा है कि z इक्वल टू क्लियरली लाई इन दिस सर्कल, ठीक है। सो इन दिस केस z इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड दिस सर्कल। तो सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट है, सर्कल के अंदर अगर एक ही पॉइंट है मतलब ये फंक्शन आपका गिवन फंक्शन इस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं आ रहा है ना। अगर वो सर्कल के अंदर है तो, अगर सर्कल के अंदर नहीं रहता तो कोई इश्यू है ही नहीं ना, क्योंकि आपको एनालिटिक एंड नॉट एनालिटिक, आपको यहाँ पे जो चेक करना है कि वो एनालिटिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपको सर्कल के बाउंड्री के ऊपर एंड सर्कल के अंदर ही चेक करना है। सर्कल के बाहर अगर आपका वो पॉइंट आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर z इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू 4 आपके सर्कल के बाहर आता है, ठीक है। तो सर्कल के बाहर अगर पॉइंट जाता है तो वहां पे एनालिटिक एंड नॉट एनालिटिक चेक करने की जरूरत है ही नहीं। इट इज ऑलवेज एनालिटिक फॉर द आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल, ओके। क्योंकि आप भी देखो ना कि z इक्वल टू 4 पे 4 माइनस 2 होता है, जीरो कब होता है, जीरो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो इट इज नॉट एनालिटिक ओनली एट z इक्वल टू 2 एंड एज दैट पॉइंट लाई इनसाइड दिस सर्कल, तो वो आपको कंसिडर करना है। जो पॉइंट्स आपके सर्कल के बाहर है उनको आपको डिलीट करना है। जो भी पॉइंट्स आपके सर्कल के बाहर आ रहे हैं, ओके, उन सारे पॉइंट्स पे आपका फंक्शन बाय डिफॉल्ट एनालिटिक आता है। इफ दैट पॉइंट लाई, क्योंकि आपको इंटीग्रल सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर ही सॉल्व करना है ना, सर्कल या सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर ही इंटीग्रल सॉल्व करना है, बाकी पॉइंट्स से कुछ रिलेट करना ही नहीं है, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व ओवर ओनली सी। So outside of this C, your function is automatic analytic, or by default it is analytic. So it is not analytic only at one point, z equal to 2 पे ही वो analytic नहीं है, वो सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, एक पॉइंट पे analytic नहीं है। तो आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में क्या चाहिए, कंडीशन क्या है कि वो एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं चाहिए। सो दैट इंटीग्रल f of z अपॉन z, f of z अपॉन z माइनस है dz इक्वल टू 2 पाई i इंटू एफ ऑफ, ये आपका फॉर्मूला है। अभी आप क्या करो, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या है, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। सो z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस 2, अगर आप कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू क्या है, z माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या है 2 क्लियरली, और न्यूमरेटर में क्या है, इन न्यूमरेटर यू विल हैव z स्क्वायर प्लस 1। तो कंपेयर करके f ऑफ z की वैल्यू, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू आती है z स्क्वायर प्लस 1, a इज 2, तो क्या करो, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सो एफ ऑफ जेड की वैल्यू z स्क्वायर प्लस 1, नीचे z माइनस 2, dz इक्वल टू 2 पाई एफ ऑफ 2। बट एफ ऑफ 2 कैसे कैलकुलेट करना, आपके पास एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड क्या है, z स्क्वायर प्लस 1, उसमें z की जगह पे 2 रख दो, 2 स्क्वायर प्लस 1 5, तो दैट आंसर इज 2 पाई आई इंटू 5, दैट इज 10 पाई आई, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट केस में आपका c क्या है, c इज दिस सर्कल मॉड z इक्वल टू 1। तो मॉड z इक्वल टू 1 मतलब क्या है, मॉड z माइनस 0 इक्वल टू 1, 0 0 पे आपको रेडियस 1 का सर्कल ड्रॉ करना है, वो मैंने ड्रॉ किया। अभी आपने स्टार्टिंग में ही क्या बोला है कि z इक्वल टू 2 पॉइंट पे, ओके, आपका फंक्शन क्या है, नॉट एनालिटिक, ये आपने स्टार्टिंग में लिखा था। बट z इक्वल टू 2 पॉइंट सर्कल के अंदर है क्या, नहीं है, z इक्वल टू 2 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी पॉइंट्स आपका सर्कल के बाहर जाता है उस पॉइंट पे आपका फंक्शन बाय डिफॉल्ट एनालिटिक होता है, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था, दिस इज फॉर होल रीजन, दिस इज नॉट फॉर सी रीजन के लिए नहीं था, दिस इज फॉर टोटल आर रीजन, मतलब एक्स एंड वाई, ये पूरे प्लेन के लिए था, वो एक्स एंड वाई प्लेन के, ओके। उसमें अगर आपको सी के ऊपर ही सॉल्व करना है तो ये पॉइंट अगर सी के अंदर आता है तो ही वो क्या होगा, नॉट एनालिटिक होगा। अगर वो सी के बाहर जाता है वो क्या बन जाएगा, एनालिटिक बन जाएगा, ओके। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, प्लीज रिप्लाई मी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट। आपको ये पता है कि ये फंक्शन आपका z इक्वल टू 2 पे, हाँ, बट अगर मैं अपने सर्कल से z इक्वल टू 2 को ही हटा देता हूं, ओके, अगर z इक्वल टू 2 जहां पे आ रहा है ना, ये 1 है, ये 2 है, अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ करता हूं तो 2 पॉइंट है ही नहीं मेरे सर्कल के अंदर। अगर 2 पॉइंट सर्कल के अंदर है ही नहीं मतलब ये डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, ओके। अगर वो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो रहा है मतलब वो एनालिटिक है। सो इन जनरल माय स्टेटमेंट इज व्हाट, इफ एनी पॉइंट लाई आउटसाइड your circle then your function become analytic, ठीक है। so that is what I want to explain in this second case. so here at z equal to 1, जो 2 पॉइंट था वो सर्कल के बाहर है, in this case z equal to 2 does not lie in this circle, ठीक है। तो आपका वो जो फंक्शन है जो उन्हें दिया z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z माइनस 2, ये जो फंक्शन ये क्या बन गया, एनालिटिक बन गया, ओके। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक आता है सर्कल के ऊपर एंड सर्कल के अंदर, ओके, इन दैट केस योर इंटीग्रल इज 0, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम, कॉचीज थ्योरम, जो टाइप के थ्योरम है।
एक थ्योरम में सारे पॉइंट्स पे वो एनालिटिक है तो 0 आता है आंसर। एक थ्योरम में अगर एक पॉइंट पे वो अगर एनालिटिक नहीं है तो आंसर क्या आता है, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। ठीक है, आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल जस्ट टू क्लियर दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन 2 इज लाइक दिस, इवैल्यूएट line integral over c 4z square plus z upon z square minus 2 dz where c is the contour mod of z minus 1 equal to 1 by 2। ठीक है, तो बाद में c का पार्ट बाद में देखते हैं, पहले फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अभी ये इन जनरल ये जो फंक्शन है ये कौन से पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं होगा, व्हेन योर डिनोमिनेटर इज 0। so z square minus 1 is equal to 0 implies z equal to 1 and z equal to minus 1। so in general this given function is not analytic at z equal to 1 and z equal to minus 1। चलो आगे, अभी आप सर्कल के ऊपर आ जाओ, बट c क्या गिवन है, c इज द सर्कल मॉड ऑफ z minus 1 equal to 1 by 2। ओके, दिस यू कैन राइट इट एज 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 plus 0 है, तो 1 0 पे एक सर्कल ड्रॉ करो हाफ रेडियस का, वो मैंने ड्रॉ किया। अभी देखो इस सर्कल के अंदर कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 तो आ रहा है बट -1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो जो अदर पॉइंट है -1 उसको डिलीट करना है, क्योंकि उसका कुछ रोल है ही नहीं कि आपके पास सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट आ रहा है। तो वो मैंने नीचे लिखा है, इन दिस केस z equal to 1 इज द ओनली पॉइंट विच लाइज इनसाइड द सर्कल। फिर से सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट है, देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आगे जाकर क्वेश्चन में सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स आएंगे, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई द अदर थ्योरम विच इज कॉल्ड एज कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, सो देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला f of z upon z minus a dz is 2 pi i into f of a। अगर आप फंक्शन देखते हो, फंक्शन ये था, ओके सॉरी फंक्शन क्या था, ऊपर क्या वो 4z स्क्वायर प्लस z अपॉन z स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फंक्शन है। ओके, कौन से पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है, एट विच पॉइंट इट इज नॉट एनालिटिक, एट 1 है ना, z इक्वल टू 1 पे वो एनालिटिक नहीं आ रहा है। सो दिस कैन बी रिटन एज 4z स्क्वायर प्लस z अपॉन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप फोकस करो, z प्लस 1 एंड z माइनस 1। ओके, अभी आप क्या करो, z इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम है, z इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम है, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, आई विल हाईलाइट बाय अदर कलर, ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस फंक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस फंक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फंक्शन आपको चाहिए न्यूमरेटर में। ओके, सो हियर दिस रिमेनिंग फंक्शन बिकम योर f ऑफ z, क्योंकि इस फंक्शन में z इक्वल टू 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये वैल्यू z इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको ऊपर रख देना है। सो नाउ इन दिस केस योर f ऑफ z बिकम दिस 4z स्क्वायर प्लस z। f ऑफ z मतलब न्यूमरेटर होता है, याद रखो ये वैल्यू, f ऑफ z मतलब न्यूमरेटर। तो 4z स्क्वायर प्लस z अपॉन z प्लस 1 बिकम न्यूमरेटर एंड z माइनस 1 बिकम डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड a की वैल्यू क्या है 1, तो आप देखो ये कैसे दिखाई देगा, 4z स्क्वायर प्लस z, बस ये ऊपर लेके जाना है, बट एट द एंड इसका आंसर क्या है, z स्क्वायर माइनस 1 ही है, z प्लस 1 और नीचे z माइनस 1। योर आंसर इज 2 पाई i इंटू f ऑफ 1, बट f क्या है, 4z स्क्वायर प्लस z अपॉन z प्लस 1, तो z की जगह पे 1 रख दो, सॉल्व करो, योर आंसर इज 5/2, 2 पाई i से मल्टीप्लाई करो एंड योर फाइनल आंसर इज 5 पाई i। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? ओके, क्विकली ले रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे कवर करने। अगर किसी कई जगह पे नहीं समझ में आता, आप मुझे इमीडिएटली स्टॉप करो। इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे बस आगे आगे जाना है। ठीक है, यू कैन स्टॉप मी एट एनी पॉइंट। अब क्वेश्चन 3, इवैल्यूएट लाइन इंटीग्रल ओवर सी z स्क्वायर z प्लस 4 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 ओवर सी इज द सर्कल z माइनस 2i इक्वल टू 3/2। तो पहले इन जनरल चेक करो कि नाउ दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक व्हेन योर डिनोमिनेटर इज 0, है ना, दैट इज z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। आप इसके रूट्स कैलकुलेटर से निकालो, यूज कैलकुलेटर एंड फाइंड दिस रूट्स। सो दोज रूट्स आर -1 -2i एंड 1 इज -1 प्लस 2i। तो आपके रूट्स क्या आ रहे हैं, -1 -2i एंड -1 प्लस 2i। ठीक है, ये आपके 2 रूट्स आ रहे हैं। अभी आप क्या करो, सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल क्या है, मॉड ऑफ z माइनस 2i इक्वल टू 3/2। z माइनस 2i को आप कैसे लिख सकते हो, अभी आपको पता है z माइनस 2i को कैसे लिख सकते हो, रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 2i इज इक्वल टू 3/2। सो 0,2 कहाँ पे आता है, 0,2 यहाँ आता है। इस पॉइंट पे 3/2 का 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, विल गेट दिस। अभी देखो, नाउ यू हैव टू टेल मी कि इन दोनों में से इसको अगर मैं z1 बोलता हूँ, इसको अगर मैं z2 बोलता हूँ, नाउ कैन एनीवन टेल मी इन दोनों में से कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है।
या दोनों आ रहे हैं, या दोनों में से Z1 आ रहा है, Z2 नहीं आ रहा है, Z2 आ रहा है, Z1 नहीं आ रहा है, या दोनों नहीं आ रहे? कैन एनीवन टेल मी विच पॉइंट्स लाई इनसाइड दिस सर्कल? जस्ट बाय लुकिंग दिस डायग्राम, कैन एनीवन टेल मी विच पॉइंट लाई इनसाइड दिस सर्कल एंड विच इज आउटसाइड? और देखो आपको क्या उसमें से समझ में आता है, बोलो। कैन एनीवन ट्राई दिस? यस, ट्राई तो करो। रॉन्ग आता तो आने दो, बोलो। विच पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल? सर्कल के अंदर कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं? Z2, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि -1 Z1 मतलब क्या पॉइंट है? x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज -2। Z2 कौन सा पॉइंट है? x कोऑर्डिनेट इज -1, y कोऑर्डिनेट इज 2। सो -1 -2 -1 -2 पॉइंट नीचे जाएगा ना यहाँ पे कहीं पे। सर्कल का तो कुछ इश्यू है नहीं, तो Z1 तो कभी नहीं आने वाला। तो आपका Z2 जो आता है वो क्या है? -1 यहाँ पे एंड 2, वो 100% सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है। सो Z2 पॉइंट लाई इनसाइड दिस सर्कल, दैट इज दैट इन नेक्स्ट पार्ट। सो हियर द सेकंड पॉइंट -1 + 2i लाई इनसाइड दिस सर्कल, ठीक है। एक ही पॉइंट है सर्कल के अंदर, तो आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या आपका? 2π f(z)(z) - dz 2πi × f(a). अभी यहाँ पे फंक्शन आपका चेंज होगा, क्योंकि आपका, हाँ देखो यहाँ पे अच्छे से, z² + 2z + 5 को मैंने कैसे लिखा है? z² + 2z + 5 को मैंने कैसे लिखा है? ऐसे, z - (-1 - 2i) and z - (-1 + 2i). So now this integral become z + 4 upon क्या है नीचे? z - (-1 - 2i). Just 1 minute. And next क्या है? z - (-1 + 2i). बट आपने अभी क्या बोला है कि ये जो सेकंड पॉइंट है ना, -1 + 2i, ओके, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बन जाता है आपका न्यूमरेटर। ये मेरे वर्ड्स आप अच्छे से याद रखो, जिस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट बिकम योर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब दैट बिकम योर f(z). जो जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है दैट बिकम योर डिनोमिनेटर, दैट इज d। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज z + 4 अपॉन दिस z - (-1 + 2i) अपॉन दिस। मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे दिखाई देगा वो, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। एंड नाउ दिस बिकम, सो दिस जो भी न्यूमरेटर है वो आपका बन जाता है f(z). तो फॉर्मूला क्या है? 2πi × f एट जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम है वो, सो f एट दिस पॉइंट -1 + 2i। वो पॉइंट बस यहाँ पे डाल दो, ओके, डू सम सिंप्लीफिकेशन, यू विल गेट 3 + 2i / 4i, 2πi से मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर फाइनल आंसर, π/2 इन ब्रैकेट 3 + 2i, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंट, ठीक है। नाउ दिस इज, आई कैन से द एक्सटेंशन ऑफ Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या चेंज है मैं आपको बोलता हूं, बाकी सारी चीजें सेम है, ओके। सर्कल के अंदर इस केस में भी एक ही पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? प्रीवियस सारे क्वेश्चन में z - a, मतलब ये जो लास्ट नीचे का टर्म था उसकी पावर 1 थी, यहाँ पे इस नंबर की जगह पे 1 था। प्रीवियस सारे क्वेश्चन में जो आपका डिनोमिनेटर था उसकी पावर 1 थी। अगर पावर 1 है तो आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना है, जो अभी तक हमने किया है। अगर पावर 1 से ज्यादा आ रही है, मतलब पावर 2 आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कंसिडर करो योर पावर इज 2, योर पावर इज 3, योर पावर इज 4, योर पावर इज 5, ओके। अगर ये आपकी पावर आती है, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस एक्सटेंशन ऑफ कॉचीज इंटीग्रल, ठीक है। सो रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो f(z) अपॉन z - a रेस टू नाउ n+1, वो पावर आपको कंसिडर करनी है। 1 है तो जैसे प्रीवियस रिजल्ट था उससे ही जाना है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है? 2πi, ये जो भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो। पावर अगर 4 है तो यहाँ पे 3 लेना है, पावर अगर 5 है तो यहाँ पे 4 लेना है, ओके, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सो n+1 है तो यहाँ पे नीचे n फैक्टोरियल आएगा, एंड आपको यही n का, ये जो n आ रहा है उस n ऑर्डर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है न्यूमरेटर का, मींस कैलकुलेट fn, मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एंड कैलकुलेट दैट वैल्यू एट a, जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है,
ठीक है, अभी आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, सो आई विल टेक डायरेक्टली वन एग्जांपल, तो अच्छे से क्लियर होगा। इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज द इलिप्स गिवन है। ओके, पहले ये देखो कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। सो हियर दिस गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक वेयर योर डिनोमिनेटर इज 0, दैट इज z इक्वल टू 3/2 पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से होगा। पावर देख के समझ में आता है, स्क्वायर क्यूब 3, अगर ये पावर आती है तो वहां पे एक्सटेंशन का यूज करना है। ओके, अब देखते कि यहाँ पे एक ही पॉइंट है 3/2, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू चेक वेदर दैट पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल और नॉट। ओके, सो ड्रॉ दिस रीजन, इलिप्स को ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे नीचे 4 है तो एक्स एक्सिस पे 2 0 एंड -2 0, वाई के नीचे 9 है तो वाई एक्सिस पे 0 3 एंड 0 -3। पॉइंट क्या था 3/2, मतलब 1 पॉइंट समथिंग। ओके, 3/2 मतलब रियल पार्ट क्या है 3/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, तो कौन सा पॉइंट है ये, इट्स एक्चुअली 3/2, 0। कहाँ पे आएगा 3/2, 0, यहाँ पे कहीं पे आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सो दैट पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, सो 3/2 लाई इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल मतलब एक ही पॉइंट इनसाइड द सर्कल, मतलब कॉची का यूज करना है, बट यहाँ पे पावर एक से ज्यादा थी तो ये रिजल्ट यूज करना है, n+1 इक्वल टू 2π/n फैक्टोरियल fn एट a। अभी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। न्यूमरेटर क्या था, व्हाट इज योर न्यूमरेटर, f ऑफ z की वैल्यू क्या है 2z² + z + 5। a क्या था, कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है 3/2 पे, पावर क्या गिवन है दिखाता हूँ, पावर क्या गिवन है 2, पावर क्या गिवन है 2, तो n+1 की वैल्यू क्या आएगी, n+1 की वैल्यू क्या आएगी 2, तो उससे n क्या होगा 1। अब ये सारी चीजें बस यहाँ पे रख दो राइट साइड में, 2πi n की वैल्यू क्या है 1, सो 1 फैक्टोरियल। हमेशा याद रखो जो भी z - a की पावर उससे 1 लेस करना है, यानी f nth डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे n 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f एट 3/2, बट f आपको पता ही है f क्या है 2z² + z + 5, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 4z + 1, बट कैलकुलेट करना है 3/2 पे, दैट वैल्यू इज 7 रख दो यहाँ पे, 2πi into 7 become 14πi, and that is your final answer. ठीक है, I will take one more example. I will take the more number of example just to clear this concept. Now, question 2 is like this. Evaluate this line integral sin 2z upon z plus π/4 raised to 4. Raised to 4 है मतलब ये एक्सटेंशन से ही होगा, आप इतना याद रखो। Let's see the circle mod z equal to 2. पहले देखो कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं आ रहा है। सो दिस गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक व्हेन योर डिनोमिनेटर इज 0, दैट इज व्हेन z + 3 इक्वल टू z plus π/3 इक्वल टू 0, एट दैट पॉइंट योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, दैट इम्प्लाइज योर z इक्वल टू -π/3। ये मैंने पॉइंट में कैलकुलेट करके रखी क्योंकि मुझे आगे चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है या सर्कल के बाहर आ रहा है। सो फॉर z इक्वल टू -π/3 योर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, बट आपको सर्कल क्या गिवन है मॉड z इक्वल टू 2, मतलब 0 0 पे रेडियस 2 का सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। हाँ, अभी देखो -1.0 मतलब -1 मतलब यहाँ पे कहीं पे आने वाला है, तो ये सर्कल के अंदर आ रहा है, देयरफॉर दिस गिवन पॉइंट लाइन साइड द सर्कल, एक ही पॉइंट है सर्कल के अंदर, तो कॉची से सॉल्व करना है, बट पावर एक से ज्यादा थी इसलिए n+1 का रिजल्ट यूज करना है, तो n+1 नीचे n फैक्टोरियल fn। अभी कंपेयर करो, न्यूमरेटर क्या था sin 2z, कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है -π/3 पे, इसकी पावर क्या थी, पावर आई थिंक 4 थी, तो n+1 की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 3, सारे वैल्यूज रख दो, 2πi/3 फैक्टोरियल, f3 मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f एट -π/3, तो पहला डेरिवेटिव के f ऑफ z ये था, व्हाट इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव 2 cos of 2z, सेकंड डेरिवेटिव -4 sin of 2z, थर्ड डेरिवेटिव -8 cos of 2z। नाउ थर्ड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज एक्चुअली -8 cos in bracket 2 multiplied by z की वैल्यू क्या है -π/3, so it become -2π/3, and कैलकुलेट करो कैलसियम में सारी चीजें हो जाएगी, that answer is 4, so 2πi/3 factorial multiplied by 4, your final answer is this, ठीक है। so this is I will not repeat, सेम क्वेश्चन है, ओके। मैंने प्रैक्टिस के लिए ज्यादा एग्जांपल दिए थे। ये z इक्वल टू π/4 पे एनालिटिक नहीं है, सर्कल क्या है z मॉड z इक्वल टू 1 मतलब रेडियस 1 का सर्कल है 0 0 पे, ये सर्कल है, π/4 मतलब 0.78 आता है, 0.78 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, सर्कल के अंदर है, तो आपको कॉची थ्योरम यूज करना है, ये आपका थ्योरम है। कंपेयर करो, न्यूमरेटर यहाँ आता है, दिस इज योर न्यूमरेटर, कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है π/4 पे प्रॉब्लम है, उसकी पावर क्या है, फंक्शन के डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रहा है उसकी पावर क्या है 3 है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 2, सारे वैल्यूज रख दो। f का डबल डेरिवेटिव चाहिए, बट f क्या है ये
एक बार डिफरेंशिएट करो, एक और बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव एट π/4 कैलकुलेट करो, ये 1/√2 0 हो जाएगा, यू विल गेट ओनली 2, सो 2πi upon 2 factorial multiply by 2, that final answer is 2πi. Simple. Okay, that's why I have skipped this part. ठीक है, okay, now it is clear, confirm. Okay, it's better if you just give me one miss call. Okay, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, okay, मैं तो चेक करता हूँ इन बिटवीन, बट अगर कहीं पे लग रहा है so just give me miss call. Also I have recorded all these sessions. Okay, तो उससे भी आपको जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है you can refer that again. Now tell me, is there any doubt up to this part? जितना अभी तक हमने लिया है उसमें कुछ डाउट्स है क्या? सिर्फ फ्रैंकली बोलो, क्योंकि क्योंकि रिमेनिंग टॉपिक मैं कैसे भी कवर करने वाला हूँ, सो नो प्रॉब्लम इन दैट. आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, मैं खुद रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. इज देयर एनी डाउट? जस्ट लेट मी नो. समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? बस यहाँ पे एक फंक्शन गिवन होता है जिसमें बस मैं चेक कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर क्या है, कौन से वैल्यूज के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो वैल्यूज में ले लेता हूँ पहले, है ना. फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ओके, या सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ही होता है, सर्कल ड्रॉ करता हूँ. वो जितने पॉइंट्स थे जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा था, उनमें से कितने पॉइंट सर्कल के अंदर है, ओके, वही मुझे चाहिए. अगर एक ही पॉइंट मिलता है तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एक से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो एक और फॉर्मूला आने वाला जो मुझे अभी आपको देना है, ठीक है. हाँ, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में 2-3 टाइप है ना. एक क्या है कि अगर सर्कल के अंदर एक भी पॉइंट नहीं आता है तो आपका इंटीग्रल 0 होता है. सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट आता है तो आपका इंटीग्रल होता है 2πi इंटू एफ ऑफ ए. अगर ओके आपका जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है अगर उसकी पावर n+1 आती है, या यहाँ पे पावर 2 आती है, 3 आती है ना, 2 पावर आती है, 3 पावर आती है, 4 पावर आती है, तो आपको एक और यूज करना है थ्योरम विच इज 2πi अपॉन n फैक्टोरियल f nth डेरिवेटिव एट a. ये थर्ड थ्योरम था, ठीक है. सो इज देयर एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? जितना अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जस्ट गिव मी योर रिप्लाई थ्रू मैसेजेस और डायरेक्टली आप बोलो, या फिर से रिपीट करना है अभी तक जितना लिया है. टेल मी क्विकली, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? जस्ट टेल मी दैट, आर यू गेटिंग दिस और नॉट, और यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन? यस, रिप्लाई करो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. Other students, please reply. Put your own thought whether you are getting this or not getting this. ठीक है. Okay, so I think now I will go with the जितने स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, ओके, उस मेजोरिटी से मैं जाता हूँ, ठीक है. हाँ, एंड नाउ द सेकंड पार्ट, ओके, या इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अभी तक मेजर कंटेंट वही है कि आपका फंक्शन at which point your function is not analytic, okay, if your denominator is 0. जिस पॉइंट्स पे आपका डिनोमिनेटर 0 होता है उन पॉइंट्स पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं आता है, ठीक है. सो दिस आर द सिंपल डेफिनेशन. अ फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज अ पोल. जनरली मतलब पोल और नॉट एनालिटिक ये सेम ही पॉइंट्स आते हैं, तो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है. मतलब जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वही पॉइंट आपका पोल ही होता है, ठीक है. तो ये एट द एंड ये सिमिलर डेफिनेशन है. सो अ फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज अ पोल एट जेड इक्वल टू ए. मतलब ये जो फंक्शन है, अब देखो इस फंक्शन में जेड इक्वल टू ए रख देते हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, सो इट बिकम अ पोल, ठीक है. सो आंसर इज व्हाट, लिमिट जेड टेंड्स टू, ये डेफिनेशन है. अगर आप लिमिटिंग वैल्यू लेते हो तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी. वही तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 आता है, ठीक है ना, तो एक्चुअली अगर आप वैल्यू पुट कर दे तो आपका आंसर इन्फिनिटी बनता है ना. जैसे कि यहाँ पे जेड इक्वल टू ए रख देते हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, देयरफॉर जेड इक्वल टू ए बिकम पोल. एंड उसकी जो पावर है, ओके, उसकी जो भी पावर है दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट पोल. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओके. अगर आपको पता है कि z इक्वल टू ए पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, मतलब नीचे कैसे दिखाई देगा, z माइनस ए. z इक्वल टू ए के अगर z इक्वल टू ए पे अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो टर्म कैसे दिखाई देगा, z माइनस ए. तो z इक्वल टू ए बिकम पोल, है ना. एंड उसकी जो भी पावर है, अगर 4 पावर है तो z इक्वल टू ए इज एक्चुअली अ पोल ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है. मैं आपको दिखाता हूं. नाउ हियर z स्क्वायर प्लस 1, तो z इक्वल टू +1 पे -1 पे
आपका डिनोमिनेटर 0 आता है, देयरफॉर +1 एंड -1 आर दी पोल्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय पोल ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, तो जो भी उसकी पावर है दैट इज द पोल ऑफ दैट ऑर्डर। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन रेफर दिस डायरेक्टली। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल z² अपॉन z+1 क्यूब, z-1 स्क्वायर एंड z+4। सपोज दिस इज योर फंक्शन, है ना। हियर यू कैन इजीली सी ऑब्जर्व दैट एट z इक्वल टू -1, एट z इक्वल टू 1 एंड एट z इक्वल टू -4, इन तीनों पॉइंट्स पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, देयरफॉर दिस आर योर पोल्स, ठीक है। और हर एक पोल की जो भी ऑर्डर है, मतलब -1 ये था, उसकी पावर क्या है 3, ओके, दैट इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3। +1 ये था, उसकी ऑर्डर क्या है 2, दैट इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2। -4 हाँ ये था, उसके ऑर्डर क्या है 1, दैट इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑर्डर मतलब आगे जो टॉपिक मैं आपको देने वाला हूं ना, इन दैट टॉपिक आपको पोल भी पता होना चाहिए और उसकी ऑर्डर भी पता होनी चाहिए। तो सिंपल क्या है, पोल तो आपको पहले से पता है, जो अभी आपने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में किया था, जिन वैल्यूज पे आपका डिनोमिनेटर 0 आता है दोज आर योर पोल्स, ये तो क्लियर हो गया। ऑर्डर क्या है, उनकी जो भी पावर है वो उसकी ऑर्डर है, ठीक है। सो एंड पोल ऑफ ऑर्डर 1 इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल पोल। दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन, ओके, व्हिच इज इंपॉर्टेंट एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न। सिंपल पोल में पावर 1 आती है। सेम है रैशनल फंक्शन में पोल क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर 0 आता है वो पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट, ओके, इट इज अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। दीज आर जस्ट अ सिमिलर डेफिनेशंस। पोल आने दो, नॉट एनालिटिक आने दो, सिंगुलर आने दो, इन सब का मीनिंग वही है कि डिनोमिनेटर आपका 0 होता है, ठीक है। एक्चुअल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी डेफिनेशन, ओके, बट जितना कंटेंट आपको सिलेबस में, दैट इज अ प्योर पार्ट, ओके। कॉम्प्लेक्स का वो प्योर पार्ट है विच आई डोंट वांट टू डिस्कस राइट नाउ, एंड आल्सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, ठीक है। So singular point is a point where function is not analytic. So this is the definition. Z equal to -4 पे denominator आपका 0 हो रहा है, therefore it is not analytic when Z equal to -4. Isolated singularity. Isolated singularity का इन सारे स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि Z equal to -4 पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हाँ, Z equal to -4 पे दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो आप अगर -4 पॉइंट के अराउंड कोई भी एक स्मॉल नेबरहुड कंसिडर करते हो या एक सर्कल ड्रॉ करते हो, अगर मैं -4 पॉइंट के अराउंड इफ आई ड्रॉ एनी स्मॉल नेबरहुड, जितना स्मॉल करना है उतना स्मॉल आप ड्रॉ करो, रेडियस लेना आपके हाथ में, बट जितना स्मॉल आपको लेना है आप ले लो, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, अगर इस सर्कल के अंदर सारे पॉइंट्स के लिए अदर देन -4 अगर वो इस सर्कल के अंदर सारे अदर पॉइंट्स पे एनालिटिक आता है, देन इट बिकम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड मतलब सिंगल है वो, ओके। उसके अराउंड एक नेबरहुड रहता है जिसमें वो फंक्शन आपका क्या एनालिटिक है, ओके। ये बस आपको एमसीक्यू पर्पस के लिए चाहिए, इसके ऊपर ना कोई थ्योरी एग्जांपल है ना आपको कहीं भी यूज करना है। So z equal to a is the singularity of f of z and there is no other singularity within a small neighborhood of z equal to a। मतलब z equal to a ये ऑलरेडी सिंगुलरिटी है, बट इसके नेबरहुड में अदर देन ए कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है, देन दैट सिंगुलरिटी इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ये पॉइंट्स आपको पता है ना आइसोलेटेड है, अलग अलग है, आइसोलेटेड, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक, देन विल स्टॉप, आफ्टर दिस टॉपिक विल स्टॉप, ठीक है। तो और आई थिंक एक विद इन 20 to 25 मिनट्स में हो जाएगा। सो बी फोकस, ओके, क्योंकि ये लाइव लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप कितने बार भी रिपीट देखने की कोशिश करो, ओके। मुझे पता है कि व्यूज हार्डली देयर आर 50 to 20 व्यूज, ठीक है। सो नो वन इज चेक दैट वीडियो अगेन, सो एटलीस्ट ट्राई टू फोकस मोर एंड मोर इन दिस लाइव लेक्चर, और कुछ भी डाउट्स आते तो आप मुझसे पूछो, ठीक है। अब ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम का मतलब व्हाई वी नीड दिस थ्योरम, ओके। सिंपल लॉजिक क्या है कि प्रीवियस में जो रिजल्ट था ना, वो रिजल्ट क्या था कि सर्कल के अंदर अगर एक भी पॉइंट नहीं आता है तो आंसर होता है 0। सर्कल के अंदर अगर एक पॉइंट आता है तो आपके पास कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला था 2πi f of a। अभी अगर सर्कल के अंदर एक से ज्यादा पॉइंट्स आते हैं तो क्या करना है, एक से ज्यादा पॉइंट्स आते तो क्या करना है, फॉर दैट वी नीड दिस कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब कॉची रेसिड्यू थ्योरम इज अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक पॉइंट के लिए भी होगा, एक से ज्यादा पॉइंट्स के लिए भी होगा। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट है मतलब कॉची रेसिड्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर n पॉइंट्स, इट इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर n पॉइंट्स, ठीक है। सो दैट इज अ मोर जनरल केस, एंड जनरली स्टूडेंट ये प्रेफर करते हैं,
ठीक है, आपको मैं बोलता हूँ कैसे। बट आप देखो अगर मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स है तो रेसिड्यू थ्योरम से ही जाना होगा। एक पॉइंट है तो आप कॉची का भी यूज कर सकते हो और रेसिड्यू का भी यूज कर सकते हो। सो रिजल्ट इज लाइक दिस, इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑन एंड विद इन अ क्लोज curve C, okay, but except analytic है, but except this few points, there are some finite number of points, okay, finite मतलब n points, okay, finite number of points। उस केस में आपका इंटीग्रल क्या होता है 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एक्चुअली फाइनाइट की जगह पे एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोल सिंगुलर पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स आई कैन टेक z1 में ऐड करके देता हूँ आपको एंड zn, ओके, आई विल एडिट दिस एंड सेंड यू अगेन। मतलब फंक्शन आपका एनालिटिक है सारे पॉइंट्स पे एक्सेप्ट दिस n पॉइंट्स, मतलब वो क्या है सर्कल के अंदर n पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, z0 z1 z2 ऐसे n पॉइंट्स आ रहे हैं सर्कल के अंदर। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ओके, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सो दैट इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आई इन ब्रैकेट r1 प्लस r2 प्लस r3 अप टू rn, ठीक है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये तो क्लियर है 2 पाई आई, बट व्हाट इज दिस r1, ये r1 r2 rn बेसिकली क्या है, दिस आर कॉल्ड एज रेसिड्यूज, इसलिए थ्योरम का टाइटल क्या है, रेसिड्यूज थ्योरम। दिस आर कॉल्ड एज रेसिड्यूज एट द सिंगुलर पॉइंट और इनसाइड द सिंगुलर रेसिड्यूज एट द सिंगुलर पॉइंट, दिस आर द रेसिड्यूज एट द सिंगुलर पॉइंट्स। मतलब जो फॉर एग्जांपल आपका 2 सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, z इक्वल टू 2 पे प्रॉब्लम है, तो उस पॉइंट पे आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए नेक्स्ट रिजल्ट है, ओके। What is that result? The residue are at any singular point z equal to z0 is which is a pole of order m, ये सारे कंडीशन है, ठीक है। z इक्वल टू z0 पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो z इक्वल टू z0 पे रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। सो फॉर्मूला इज दिस, बट प्रोवाइडेड इफ इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m, पोल ऑफ ऑर्डर m मतलब आपको पता है कि उसकी पावर देखनी पड़ती है, z माइनस z0 में पावर में क्या है, अगर पावर में m है then it become a pole of order m, पावर में 2 है then it become pole of order 2, okay, then your result is 1 upon m minus 1 factorial, तो यहाँ पे पोल के ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 upon m minus 1 factorial d raised to m minus 1 upon dz raised to m minus 1 z minus z0 मतलब जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम है वो z minus z0 raised to m पोल ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय योर गिवन फंक्शन। ये न्यूमरेटर नहीं है यहाँ पे, ये आपका होल फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखो होल फंक्शन ही लिया। तो रेसिड्यू थ्योरम में आपको न्यूमरेटर से नहीं खेलना है, आपको टोटल फंक्शन के साथ ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। आई विल टेक few examples then only it is clear, and now I hope it is visible, कुछ पार्ट ठीक है मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्विकली। सो दिस लास्ट पार्ट इज mod of z plus 1 equal to 2, okay, now I will explain this question using the residue theorem, ये मेंशन नहीं होता बट एग्जाम में, using the residue theorem evaluate this integral 2z square plus 2z plus 1 upon z plus 1 cube z minus 3 dz where c is the circle mod z plus 1 equal to 2। आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को अप्रोच किया था वैसे आपको जाना है, यह आपका टोटल फंक्शन है। पहले ये देखो कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं आ रहा है, तो z इक्वल टू -1 पे ये वैल्यू 0 होगी, z इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 3, ओके। अभी ये देखो कि इन दोनों में से कितने पॉइंट्स अपने सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 2, ये क्या है सर्कल ऑफ रेडियस, क्योंकि ये +1 है, आपको इसको कैसे लिखना है, मॉड ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r, जैसे तो मैं क्या कर रहा हूँ मॉड z माइनस 1 को -1 लिखता हूँ, अभी रियल पार्ट -1 है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। आप देखो इनका कैलकुलेशन z प्लस 1 ही आता है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली अ सर्कल हुज सेंटर इज एट -1, 0 -1, 0 मतलब ये इस पॉइंट पे सेंटर है, रेडियस क्या है 2, रेडियस इज 2। अभी देखो कौन से पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहे हैं, -1 तो आ रहा है क्लियरली, दिस इज इनसाइड द सर्कल, 3 आउटसाइड द सर्कल है, तो 3 आपको डिलीट करना है, 3 का कोई रोल नहीं है, सो दिस 3 इज आउटसाइड द सर्कल। आगे आप देखो सर्कल के अंदर एक ही पॉइंट आ रहा है, मींस फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन अप्लाई कॉची इंटीग्रल थ्योरम आल्सो, ठीक है, और यू कैन अप्लाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम आल्सो।
ये आपकी चॉइस है। मैं अभी ये रेसिड्यू का पार्ट है तो मैं रेसिड्यू से एक्सप्लेन करता हूँ, आप बाद में डिसाइड करो कि आपको कौन से मेथड से अच्छे से समझ में आता है या आपको कौन से मेथड के कैलकुलेशन अच्छे लगते हैं। ठीक है, so here z equal to -1 is lies inside the circle, therefore by Cauchy's residue theorem। रेसिड्यू थ्योरम में सिंपल लॉजिक क्या होता है, 2 पाई i रख दो और जितने पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है और हर एक पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, रेसिड्यू वैल्यू, मींस r1 r2 r3। यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो आपको एक ही वैल्यू चाहिए r1। सो r1 इज व्हाट, रेसिड्यू एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है, कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है, -1 पे। हाँ, तो रेसिड्यू एट -1, सो वेयर r1 इज एक्चुअली रेसिड्यू एट -1। अभी ये कैसे कैलकुलेट करना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। ठीक है, तो z इक्वल टू -1, ये पॉइंट सर्कल के अंदर था, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। ओके, तो रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स है उन पे आप रेसिड्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो, मतलब r1 r2 rn की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अभी मुझे r1 कैलकुलेट करना है z इक्वल टू -1 पे। ओके, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले ये देखो कि ये z इक्वल टू -1 की ऑर्डर क्या है, z इक्वल टू -1 की ऑर्डर क्या है, ऊपर आ जाओ। हाँ, ये था वो z इक्वल टू -1 का पार्ट, तो इसकी ऑर्डर क्या है, 3। So z equal to -1 is actually a pole of order 3। This is very important because अगर आपकी पोल की ऑर्डर रॉन्ग आ गई, आपका नीचे का पार्ट कोई चेक नहीं करने वाला। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। ओके, इसे पोल ऑफ ऑर्डर हम कैसे किया, z इक्वल टू -1, ये टर्म था z+1 का, तो यहाँ पे z+1 की पावर 3 है, therefore it is a pole of order 3। Now next, so r1 यम मतलब ऑर्डर है, सो 1/m-1 फैक्टोरियल फॉर्मूला है डायरेक्टली। हाँ, वहां पे यम में आए, या यम बेसिकली क्या है, इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3। एफ ऑफ जेड क्या है, आपका गिवन फंक्शन जो भी दिया है वो, न्यूमरेटर नहीं है, जो भी उन्होंने दिया है वो टोटल लेना है। जेड नॉट क्या है, कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम है, -1 पे प्रॉब्लम है, तो वो जेड नॉट है। सारे वैल्यूज रख दो यहाँ पे ऊपर एज इट इज, 1/2 फैक्टोरियल d² मतलब डबल डेरिवेटिव z+1 क्यूब, क्योंकि +1 क्यों आ रहा है, बिकॉज जेड नॉट इज -1, सो z+1 m इज 3 क्यूब, ये आपका टोटल एफ ऑफ जेड। हमेशा क्या होता है, ये वैल्यू आपकी कट हो जाएगी हमेशा, सारे एग्जांपल में। ठीक है, ये कट होने के बाद आपको डबल डेरिवेटिव ऑफ 2z² प्लस 2z प्लस 1/z-3 एंड z इक्वल टू -1। ठीक है, डबल डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से स्टार्ट करो, u बाई v का रूल, v² v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डू दिस सिंप्लीफिकेशन, यू विल गेट दिस। एक और बार लेना है क्योंकि डबल था, एक हो गया, एक और बार लेना है, सो v² v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, z इक्वल टू -1 रख दो अभी, क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स हो गए। जहाँ पे z था, z की जगह पे -1 रख दो, कैलकुलेशन में सॉल्व करो, ये नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ तो वो कैलकुलेशन है। दैट फाइनल आंसर इज -25/64। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r1। सो 2 पाई i इंटू r1, बट r1 क्या है, -25/64, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई थिंक अभी सेकंड एग्जाम्पल से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ask me. Now evaluate line integral over c sin pi z² plus 2z upon z-1 whole square z-2 where c is the circle mod z equal to 4। तो पहले ये देखो कि आपका टोटल फंक्शन कौन से पॉइंट पे एनालिटिक नहीं आ रहा है, z इक्वल टू 1 पे एंड z इक्वल टू 2 पे, सो इट इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। z इक्वल टू 4 सर्कल ड्रॉ करो, तो ये आपका z इक्वल टू 4 का सर्कल है। 1 आता है क्या सर्कल के अंदर, आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है, मींस वी कैनॉट अप्लाई कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये तो रेसिड्यू से ही करना होगा। ठीक है, सो एज दिस बोथ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, देयरफॉर बाय रेसिड्यू थ्योरम इट इज इक्वल टू 2 पाई i रेसिड्यू एट फर्स्ट पॉइंट प्लस रेसिड्यू एट सेकंड पॉइंट। जितने पॉइंट्स अंदर आ रहे हैं उतने पॉइंट पे रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट r1, इट इज अ रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1। अभी इसकी ऑर्डर कैलकुलेट करो, z इक्वल टू 1 कहां से आ रहा था, z इक्वल टू 1 यहां से आ रहा है, इसकी ऑर्डर क्या है, 2। ओके, 2, z इक्वल टू 1 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। फॉर्मूला आपको पता ही है, इसमें m इक्वल टू 2 रख दो, पोल के ऑर्डर, पॉइंट क्या है वो z इक्वल टू 1, एफ ऑफ जेड गिवन फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर वाला, रख दो सारे वैल्यूज, ये हमेशा कैंसिल होता है। ओके, आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, सो v² v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड z इक्वल टू क्या रख देना है, 1। डू दिस कैलकुलेशन, इफ यू वांट यू कैन डू दिस इन कैलकुलेटर, आप देखो कैसे करना है। 2 पाई -4, ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट रेसिड्यू। सेकंड क्या है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2, इसकी पावर देखो क्या है, z इक्वल टू 2 कहां से आ रहा था, यहां से आ रहा है, इसकी पावर क्या है, 1, सो इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1।
यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखो क्या कितना सिंपल होता है, इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर यम, तो यम की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो यम इक्वल टू 1, यम इक्वल टू क्या क्या पुट करना है मैं लिखा, तो यम इक्वल टू 1 रख दो, पॉइंट क्या था जेड इक्वल टू 2, एफ ऑफ जेड मतलब गिवन फंक्शन। ओके, इफ इट इज नॉट क्लियर ना आई विल एडिट दिस एंड विल सेंड दैट प्रॉपर पार्ट। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको, आई थिंक कुछ पार्ट ब्लर हो रहा है। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स रख दो। अभी यहाँ पे यम आपका -1, यम आपका 1 है, तो यहाँ पे क्या आता है 1 अपॉन यम -1 फैक्टोरियल बिकम 0 फैक्टोरियल, डी रेस टू क्या था यम -1 बट यम इज 1 सो इट इज डी रेस टू 0, डी जेड रेस टू 0। ओके, जेड माइनस पॉइंट क्या है 2, रेस टू क्या है 1, यम मल्टीप्लाई बाय गिवन फंक्शन वो क्या है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस 2z डिवाइडेड बाय z-1 होल स्क्वायर इंटू z-2 एंड कैलकुलेट करो z इक्वल टू 2 पे। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, एंड ये d रेस टू 0 dz रेस टू 0 ये भी वैल्यू जाएगी 1 पे। ठीक है, एंड ये z-2 कैंसिल विद दिस z-2, सो यू विल हैव ओनली sin पाई z स्क्वायर प्लस 2z अपॉन z-1 होल स्क्वायर, कैलकुलेट करना z इक्वल टू 2 पे। ठीक है, सो दैट वैल्यू इज 4। सो फर्स्ट रेसिड्यू था 2 पाई माइनस 4, योर सेकंड रेसिड्यू इज 4, दोनों की एडिशन आती है 4 पाई, दोनों की एडिशन इज 2 पाई ओनली एंड दैट आंसर इज 4 पाई आई स्क्वायर, 4 पाई आई, 4 पाई स्क्वायर आई, 4 पाई स्क्वायर आई। ठीक है, नाउ दिस लास्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट कॉट जेड। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर इसको रिप्लेस करना होगा बाय कॉस जेड बाय साइन जेड, बिकॉज वी वांट डिनोमिनेटर वैल्यू, नीचे आपको टर्म चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से पॉइंट्स पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं आ रहा है। ठीक है, सो हियर कॉट जेड इज, इमेजिन दिस कॉट जेड एज कॉस अपॉन साइन। ठीक है, सो सर्कल क्या गिवन है जेड इक्वल टू 4, so this given function is not analytic when your sin z equal to 0, but sin z equal to z sin z equal to 0 का सिंपल मीनिंग क्या होता है z equal to n पाई, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, z equal to n पाई पे sin z आपका 0 होता है, where n is the integer। okay, n is the integer means what, n takes values from 0, 1 पे पाई, -1 पे माइनस पाई, 2 पे 2 पाई, -2 पे -2 पाई, ये सारे वैल्यूज आ जाते हैं z के। अभी आपके पास सर्कल क्या है मॉड z इक्वल टू 4, वो ड्रॉ करो और देखो इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 0 तो आ रहा है, 0 आ रहा है, पाई भी आ रहा है सर्कल के अंदर बिकॉज रेडियस इज 4, माइनस पाई भी सर्कल के अंदर आ रहा है, बट 2 पाई सर्कल के बाहर जा रहा है, 2 पाई यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इसके आगे सारे वैल्यूज डिलीट करो। सो देयर आर 3 पॉइंट्स एक्चुअली विच लाइज इनसाइड दिस सर्कल। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स के लिए आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, दैट बिकम R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है रेसिड्यू एट, R1 क्या है रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पे ना हमेशा याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अभी मैं आपको ये इतने इन डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पोल की ऑर्डर हमेशा 1 आती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि z-0 की ऑर्डर क्या है। ठीक है, कि उसका भी एक मतलब लॉजिक है। ओके, बट आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल राइट नाउ, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पोल की ऑर्डर यहाँ पे हमेशा 1 लेनी है। ठीक है, यू कैन फाइंड योर रीजन। और एक मैंने ऊपर डेफिनेशन भी दी है कि जिन पॉइंट पे पोल ऑफ ऑर्डर यम कैसे कैलकुलेट करने की डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, यू कैन ट्राई दैट आल्सो। सो z इक्वल टू 0, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पोल 1 लेना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो z इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर यम, तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/0 फैक्टोरियल d रेज़ टू 0 dz रेज़ टू 0, z माइनस पॉइंट क्या है 0, फंक्शन f ऑफ z कैलकुलेट करो एट z इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले से किया है, क्या था फॉर्मूला 1/m-1 फैक्टोरियल d रेज़ टू m-1 dz रेज़ टू m-1। ठीक है, z माइनस z नॉट एंड f ऑफ z कैलकुलेट करो एट z इक्वल टू z नॉट। ठीक है, सो यू कैन चेक फ्रॉम दैट। हाँ, इसके आगे थोड़ा आपको अच्छे से करना है, इसके आगे z अपॉन साइन z का लिमिट, z अपॉन साइन z का लिमिट z टेंस टू 0 1 आता है, देयरफॉर यू विल हैव ओनली cos z एट z इक्वल टू 0। ये लिमिटिंग वैल्यू से कैलकुलेट करना है क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। ओके, एंड नाउ देयरफॉर फाइनल आंसर इज 1। सो फर्स्ट रेसिड्यू इज 1, सेकंड रेसिड्यू z इक्वल टू पाई पे, z इक्वल टू पाई पे यू विल हैव हियर again it's a polar of order 1/0 factorial d raised to 0 upon dz raised to 0 z minus pi f of z equal to pi। ठीक है, यहाँ पे भी z minus pi upon sin z का लिमिट
z टेंस टू पाई आप कैलकुलेट करो, मैंने दिया है शायद यहाँ पे, z टेंस टू पाई z माइनस पाई अपॉन साइन z, ओके, ये 0/0 फॉर्म है, सो बाय एल हॉस्पिटल रूल इट इज 1 अपॉन कॉस z, डेरिवेटिव लेके, ओके, z इक्वल टू पाई पुट करो, कॉस पाई -1 होता है तो वो लिमिट आता है -1, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ रही है -1, सो माइनस कॉस z आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, z इक्वल टू पाई रख दो, बट अगेन cos पाई इज -1, सो -1 इंटू -1 बिकम 1, ठीक है। सो नाउ थर्ड z इक्वल टू माइनस पाई पे कैलकुलेट करना है, ओके, अगेन इट्स अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, सेम है, z इक्वल टू पाई का एंड z इक्वल टू माइनस पाई का कैलकुलेशन सेम, सो 1/0 फैक्टोरियल d रेज टू 0 dz रेज टू 0 z प्लस पाई f ऑफ z इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है। नाउ अगेन हियर z प्लस पाई और साइन z का लिमिट आप सेपरेट कैलकुलेट करो, z टेंस टू माइनस पाई पे यूजिंग यल हॉस्पिटल रूल, तो z प्लस पाई अपॉन साइन z 0/0 फॉर्म है ना, डेरिवेटिव लेना है तो z का 1 cos साइन का cos z इक्वल टू माइनस पाई पुट करो, वैल्यू -1 आती है, -1 यहाँ पे रख दो, माइनस cos z आएगी, z इक्वल टू माइनस पाई रख दो, -1 बिकम +1, तो योर रेसिड्यूज आर 1 then 1 then 1 and your final answer is 6 pi I, ठीक है। And now only one question is there, so which I will cover within only 2 minutes, and after that we'll stop, ठीक है। So I will explain only for 2-3 minutes and then we'll stop. And now the last part from this chapter, ठीक है, or from this unit is actually if given integral contain sin theta term or cos theta terms, okay, in that case we have to use this following substitution. अगर कहीं पे sin theta आ रहा है या अगर कहीं पे cos theta आ रहा है या थीटा में अगर आपका इंटीग्रल आ रहा है, तो सॉल्व करने के लिए you have to put cos theta is equal to z square plus 1 upon 2z. This is the standard substitution for cos z. You have to put sin z is equal to z square minus 1 upon 2iz. इसका प्रूफ भी सिंपल है, यहाँ पे बस मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था, r e raised to i theta, जिनको ये पता है उनको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो cos theta is z square plus 1 upon 2z, sin theta is z square minus 1 upon 2iz, और जहाँ पे डी थीटा आता है वहाँ पे मुझे क्या रख देना है, dz अपॉन iz, ये भी इसको डिफरेंशिएट करके निकाला है, i r i e raised to i theta d theta, ठीक है। सो एंड this is again z, r e raised to i theta is z, so it is just iz d theta, this is dz, so dz upon iz, that is your d theta। तो ये आप देखो, सो डी थीटा इक्वल टू जेड अपॉन आई, या सिंपल मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर इंटीग्रल में cos थीटा का टर्म आ रहा है तो जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z रख दो, साइन थीटा आ रहा है तो जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2iz रख दो, डी थीटा आ रहा है तो dz अपॉन iz रख दो। सो आई विल एंड इस केस में जो कर्व लेनी है वो आपको बाय डिफॉल्ट mod z इक्वल टू 1 ही कंसिडर करनी है। सो दिस इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ, मैं आपको अगर मेन इसका एम क्या था, तो दिस एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ रियल इंटीग्रल इनटू कॉम्प्लेक्स, रियल को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिजल्ट, ठीक है। तो ये आप देखो, ये रियल का इंटीग्रल है, आप ये कैल्कुलस में भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ रियल पार्ट, या आप सॉल्व कर रहे हो कॉम्प्लेक्स का पार्ट यूज करके या कॉम्प्लेक्स नंबर से। सो फॉर दैट वी नीड टू पुट डी थीटा इज इक्वल टू dz बाय iz, ऊपर दिया था, cos थीटा इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z, ओके। हाँ, अभी ये जो लिमिट होगा ये रिप्लेस हो जाएगा कर्व सी से, एंड कर्व सी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज कर्व सी, z इक्वल टू 1, यहाँ पे एक्चुअली मुझे मेंशन करना चाहिए था, कर्व सी इज एक्चुअली व्हाट, mod z इक्वल टू 1, ठीक है। तो वही मैंने किया है, डी थीटा की वैल्यू dz अपॉन iz, 1 अपॉन 5 माइनस 3, cos थीटा की वैल्यू z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2z, ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, i को मैंने बाहर लिया है, dz अपॉन z, इसको मैंने सॉल्व किया है, 2z इंटू 5 बिकम 10z माइनस 3z माइनस 3, ओके, नीचे का 2z का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 4z का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन से इसके रूट्स निकालो, वो आते हैं 3z माइनस 1 एंड z माइनस 2, बट स्क्वायर की वजह से इट बिकम 3z माइनस 1 स्क्वायर एंड z माइनस 2 स्क्वायर। फिर यहाँ से जो 4 था वो मैं बाहर लेता हूँ, z यहाँ से कैंसिल किया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म्स को सारे मैंने बाहर कंसिडर किया था यहाँ पे, एंड ये रिमेनिंग पार्ट है, तो ये दिस बिकम द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए देखो कौन से पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, ओके। ये 0 होता है मतलब z इक्वल टू क्या है, 1/3 है ना, तो दिस डिनोमिनेटर इज 0 फॉर z इक्वल टू 1/3 एंड z इक्वल टू 3।
है ना, इन पॉइंट पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। देखो सर्कल के अंदर है क्या, z इक्वल टू 1 पे 3 आपका सर्कल के बाहर है, ठीक है। सो ओनली 1 पॉइंट लाई इनसाइड दिस सर्कल, तो एक ही पॉइंट है सर्कल के अंदर, तो कॉची से भी जा सकते हो और रेसिड्यू से भी जा सकते हो, बट मैं कॉची से जाता हूँ। सो z इक्वल टू 1/3 लाई इनसाइड दिस सर्कल एंड इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये कैसे चेक किया कि z इक्वल टू 1/3 कहाँ से आ रहा था पॉइंट, ओके यहाँ से आ रहा था, है ना, यहाँ से z इक्वल टू 1/3 आ रहा है, तो उसकी ऑर्डर क्या है 2। therefore z equal to 1/3 is a pole of order 2 by Cauchy's residue theorem it is equal to only r1 as there is only one point inside this circle, but r1 का फॉर्मूला क्या है 1/1 फैक्टोरियल d by dz, मतलब पावर 1 है ना, सॉरी ऑर्डर 2 है तो पावर 1 आएगी यहाँ पे, ये आपको पता है अभी m-1 होता है ये, z minus 1/3 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में मैंने बस पुट किया है। आई थिंक इट इज नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टूड दिस। z minus 1/3 होल स्क्वायर, ये आपका गिवन f of z इक्वल टू 1/3, फॉर्मूला क्या है 1 minus m-1 factorial, just 1 minute, m-1 factorial in bracket d raised to m-1 dz raised to m-1 z minus z naught f of z calculate at z equal to z naught। तो m की वैल्यू क्या थी 2, m is 2, z naught की वैल्यू क्या, पॉइंट क्या था 1/3, इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, एंड f of z आपका इंटीग्रल का जो फंक्शन है, f of z यहाँ पे क्या लेना है, जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो, ये आपका f of z है एंड z नॉट इज 1/3 पुट करके यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अभी ये कैंसिल डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मुझे 3 बाहर लेना होगा, सो इट बिकम 9, नाउ यू कैन कैंसिल दिस 2 पार्ट, ठीक है, और फिर जो भी रहता है उसका डेरिवेटिव लेना है एक बार, उसमें से 9 मैंने बाहर लिया, ठीक है। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ u बाई v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, z इक्वल टू 1/3 रख दो, चाहो तो कैलकुलस में सॉल्व करो, दैट आंसर इज 5/256, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय दिस रेसिड्यू, बट वो जो इंटीग्रल था, ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको, वो जो इंटीग्रल था उसके बाहर एक 4/i एक कांस्टेंट पार्ट है, तो ये लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका आंसर क्या था, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका आपका आंसर क्या है, दैट वैल्यू इज 2 पाई आई इंटू r1, ओके। तो ये जो आंसर है, इस आंसर को मुझे 4/i से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 पाई आई इंटू r1 जो आपका पार्ट था 2 पाई आई इंटू r1, उसको मुझे 4/i से मल्टीप्लाई करना है, दैट गिव्स यू द फाइनल वैल्यू, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 6, ठीक है।